সার্ব বাহিনীর হাত থেকে বসনিয়ার মুসলিমদের রক্ষা করতে সেখানে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যে স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে বসনিয়ার জনসাধারণের কাছে। How is the morale of the Bangladeshi troops there in Bihar? Very good indeed, very good. They are in a very high state of morale. I think they are in very good. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बांग्लादेश की आर्मी का स्टैचू बनाने की बात हो रही है। ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है और बोस्निया की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम इसको अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की आर्मी है उसने हमें बचाया था। बांग्लादेश की जो 1200 सोल्जर थे, आर्मी थी, यूएन के मिशन पे जो आए हुए थे, बोस्निया उस वक्त 1990 की बात है जब जंग हुई थी, तो ये इनका एक शहर कैपिटल भाइस उसको बचाया था सर्बिया से बांग्लादेश की आर्मी ने। अब वो कहते हैं कि हम इसको स्टैचू बनाना चाहते हैं, भाइस जो कैपिटल है बोस्निया की गवर्नमेंट। और अब देखें कि क्या स्टैचू बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका किसी और आर्मी का भी बनाना चाहते हैं या वो नहीं, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन वो अगर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बांग्लादेशी आर्मी का, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने उनको बचाया था, कैप्चर नहीं होने दिया था। ये जो भाइस सिटी है सर्बिया की, जो उस वक्त जंग थी इनके साथ, बोस्निया के साथ, क्योंकि बोस्निया एक मुस्लिम मुल्क है, यूरोप का एक देश है, तो वहाँ पर फिर बांग्लादेश की आर्मी ने बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहादुरी के साथ ये मुकाबला करते हुए वो कैप्चर नहीं होने दिया सिटी, भाइस सिटी यानी बोस्निया का जो कैपिटल था वो सर्बिया को कैप्चर नहीं होने दिया था। इस तरह ये जंग जीत ली थी। तो वो कहते हैं कि हम अपनी जनरेशन को, आने वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो हमारे साथ खड़ी हुई थी और हमारे लिए उन्होंने जानें भी दी थी। और 1200 बांग्लादेशी जो सोल्जर थे उस वक्त वो मौजूद थे इस कैपिटल के अंदर, इस सिटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर, बोस्निया में, और सर्बिया को शिकस्त दी थी। आइए इसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বসনিয়া তার মধ্যে একটি। শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম হওয়ার কারণে সার্ব বাহিনীর দ্বারা নির্মম গণহত্যার শিকার হতে হয় বসনিয়ানদের। সার্ব বাহিনীর হাত থেকে বসনিয়ার মুসলিমদের রক্ষা করতে সেখানে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যে স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে বসনিয়ার জনসাধারণের কাছে। বসনিয়ার মুসলিমরা আজও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের কথা ভোলেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের কথা যেন বসনিয়ার পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে, সেজন্যে বসনিয়াতে বাংলাদেশের স্মৃতি বিজড়িত একটি স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপনের পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব ইউরোপের মুসলিম দেশ বসনিয়া সম্পর্কে। সেই সাথে এটাও জানব বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাহসী ও দৃঢ়চেতা মনোবলের মাধ্যমে কিভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে সার্ব বাহিনীকে হটিয়ে বসনিয়ার হাজার হাজার মুসলিমদের রক্ষা করেছিল। বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন দ্রুতই। 90-এর দশকে বাংলাদেশে বসে বসনিয়ার নাম শোনেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বর্তমান সময়ের রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ওই সময়ে খবরের প্রথম পাতার শিরোনামে থাকত বসনিয়া যুদ্ধ। সে সময়ে বাংলাদেশের মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বসনিয়ার মুসলিমদের সংবাদ জানতে পত্রিকা কিনত। বসনিয়ার মুসলিমদের রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সার্ব বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। বসনিয়া যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাদের আহত হওয়ার খবর গণমাধ্যমে উঠে আসতে শুরু করলে বাংলাদেশের জনসাধারণের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনগণ থেকে বাংলাদেশের আলেমোলামা পর্যন্ত সকলেই মিছিল মিটিং করে বসনিয়া থেকে বাংলাদেশি সৈন্যদের উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। I think we are very much anxious about the position of the troops of Bangladesh. I think the pullout of Bangladeshis armies from Bosnia, because their life are now risky there. The Bosnia, our soldiers, they are present. I hope that they return back.
এমনকি বসনিয়ার মুসলিমদের জন্য বাংলাদেশের মসজিদে মসজিদে দোয়া দুরুদ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। 1389 সালের যুদ্ধে তুর্কিরা সার্বদের পরাজিত করে বসনিয়া দখল করে নেয়। বসনিয়া 450 বছর ওসমানী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সেই সময় অনেক বসনিয়ান খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়। 1994 সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশি কন্টিনজেন্ট প্রথম বসনিয়ায় প্রবেশ করে। এই কন্টিনজেন্টে ছিল একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি করে ওয়ার্কশপ, লজিস্টিক্স সাপোর্ট, মেডিকেল ও সিগন্যাল ডিটাচমেন্ট। কর্নেল সেলিম আক্তারের নেতৃত্বাধীন 1200 লোকবলের এই কন্টিনজেন্টের ওপর দেওয়া হয় 1992 সাল থেকে সার্বিয়ান বাহিনীর অবরোধের সম্মুখীন হওয়া বিহাজ শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব। Right. How is the morale of the Bangladeshi troops there in Bihać? Very good, indeed very good. They are in a very high state of morale. I think they are in very good morale. Right. Are you safe and sound? Nothing to worry. तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है बांग्लादेश आर्मी के कारनामे के ऊपर। एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी, क्या ही बात है। और बांग्लादेशियों ने जिस तरह से बोस्निया के लिए काम किया, बोस्निया के लोगों के लिए उनको बचाया, वहाँ पर जो सर्बिया के साथ उनकी 1990 में 94 में एक जंग थी, उस वक्त कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेश आर्मी को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये प्रेशर था। लेकिन ये कोई अंदाज़ा, ये कोई सोच, ये कोई नहीं सकता था उस वक्त कि ये जंग हो जाएगी शुरू और सर्बिया अटैक कर देगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हुआ ऐसा कि 1200 जब सोल्जर यूएन के मिशन पर, बांग्लादेश की आर्मी जब वो बाइस सिटी है इनकी बोस्निया की, वहाँ पर चली गई, तो फिर सर्बिया ने उसको कैप्चर करने के लिए हमला कर दिया। तो फिर वहाँ पर मौजूद थे बांग्लादेशी जवान 1200 सोल्जर कर्नल सलीम अख्तर की निगरानी में। तो फिर वो बताते हैं कि इन्होंने जिस तरह से वो जंग लड़ी, तो दुनिया ने फिर देखा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उनको इतनी कोशिश नहीं थी कि वो ये कर सकें कि वो कैप्चर कर लें किसी तरीके से। बाइस जो सिटी है बोस्निया का, जो कैपिटल है, उसको वो इन्होंने कैप्चर नहीं होने दिया। यानी बांग्लादेश की फ़ौज ने, बांग्लादेश की आर्मी ने, जो 1200 उसके अंदर सोल्जर्स थे, बल्कि कुछ सोल्जर्स ने तो अपनी जान का नजराना भी दिया, शहादत हुई। और लेकिन वो दौड़ के नहीं आए और फिर वो जंग जीती है। यही वजह है कि जो बोस्निया के लोग हैं, उसकी हुकूमत है, वो एक स्टैचू बनाना चाहती है। वो कहते हैं कि ये हमारे हीरो हैं। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है वो कहते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने हमारे लिए काम किया है और हमारे लिए इन्होंने जानें दी हैं। और इसी लिए हम अपने आने वाली जो जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि ये बांग्लादेशी आर्मी है, यूएन के मिशन पे आई हुई थी और हमारे साथ ये खड़ी हुई थी उस वक्त जब सर्बिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया। लेकिन इन्होंने हमारे लिए जान दी, हमें बचाया और कैप्चर नहीं होने दिया, और आज जिसकी वजह से आज़ाद हैं। और मैं कहता हूँ कि बड़ी ऑनर की बात, रिस्पेक्ट की बात है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की आर्मी के लिए, बांग्लादेशी कौम के लिए, कि आज सर्बिया के लोग हैं वो शुक्रगुजार हैं। आज जो बोस्निया के लोग हैं वो बांग्लादेश के स्पेशल थैंक्स कर रहे हैं। और जो सर्बिया है उसको भी उस वक्त नानी याद करवा दी थी बांग्लादेश की आर्मी ने कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है और ये न झुकने वाली है, न बिकने वाली है और ना ही सरेंडर करने वाली है। तो आपका इसके बारे में व्यूअर्स क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।